پاسپورٹ آفس کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں۔ پیسے دیں تو فائل کو پہیے لگ جاتے ہیں۔ گیٹ کراس کرنے پر بھی ٹیکس لیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن پہنچنے پر شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی حالات دیکھ کر شدید برہم، بولے ڈائریکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر کوئی شکایت کر رہا ہے۔ دونوں افسران تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اچانک گارڈن ٹاؤن میں واقع پاسپورٹ آفس کا دورہ کیا تو شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ شہریوں نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے ایجنٹ مافیا کو رقم دینے کے ثبوت بھی دکھائے۔ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایجنٹ 3000 روپے دے تو باری فوری 2500 دے دیں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ بچی بھی کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیوں پاس آ کے کس کو دیا جو ڈائریکٹر صاحب جو ہے مجھے بھی بتائیں یہ کیا بات ہے؟ یہ تو سارا کچھ پورے عام چل رہے ہیں یہاں پہ۔ شہریوں نے کہا کہ پاسپورٹ آفس کا گیٹ کراس کرنے پر بھی ٹیکس ہے، جبکہ ٹوکن ٹیکس مشین خراب تھی۔ ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ یہ چاہے 9 بھی ہوں، چاہے جب رش آ جاتا ہے، ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا نا کس ٹائم کس کی باری آنی ہے، یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ وفاقی وزیر حالات دیکھ کر برہم ہو گئے اور کہا کہ عملے کی ملی بھگت کے بغیر پیسے لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تبدیل اور فوری طور پر محکمانہ کارروائی ہوگی۔ محسن نقوی نے شہریوں سے مسائل پوچھے۔ بزرگ شہری نے بھی شکایات کے انبار لگائے۔ یہ جو لین میں لگے ہیں، صبح کے ہم 8 بجے کے ہیں، 1 گھنٹہ انتظار کیا، 9 بجے بینک کھلا، اس کے باوجود 9:05 دوسرے انٹری کی، اور وہ پہلے ایجنٹوں نے کی ہے اور پھر ہماری باری پاس ہوئی۔ شہریوں نے کہا کہ پاسپورٹ آفس کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں اور پیسے دیں تو درخواست کو پر لگ جاتے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ گارڈ سے لے کر ہر کوئی پیسے مانگتا ہے۔ یہ بندہ موجود ہے، 20 وقت بھی وہاں موجود ہوگا، یہ بل کے بہانے آگے گیا ہے، یہ وہ اندر بینک والا بندہ جانتا بھی ہے، اور اس بندے نے سارے چلان نکال کے 30,000 روپے اس کو پکڑایا ہے کہ یہ میرے چلان جو ہے جلدی لیا بندے کے بعد، اس طرح کی سوچ باہر ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ وہ یہاں شہریوں کے لیے آئے ہیں اور ان کی شکایات کا ازالہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو سہولت دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ علی راہ میں سی رپورٹنگ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد نسیم معطل کر دیا، جبکہ خالد عباس اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ گارڈن ٹاؤن تعینات۔ خالد عباس کو ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا اضافی چارج بھی سونپ دیا گیا ہے۔ محمد امین کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس سگیاں تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد نسیم کو معطل کر دیا ہے۔ خالد عباس اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ گارڈن ٹاؤن تعینات کر دیے گئے۔ خالد عباس کو ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا اضافی چارج بھی سونپا گیا ہے۔ محمد امین کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس سگیاں تعینات کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے رواں سال گندم پالیسی پر کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے مقرر کی گئی۔ کسانوں کو 30 ارب روپے کا براہ راست نقصان پہنچایا گیا۔ علی رام ہمارے ساتھ ہیں، اس معاملے پر تفصیلات ان سے جانیں گے۔ علی رام آگاہ کیجیے گا، کس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس بار کسانوں کو؟ بالکل، محکمہ خوراک کی طرف سے جب نئی پالیسی کے جو گندم کی خریداری کی پالیسی ہے اس کی اپروول لی گئی تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ پنجاب کے اندر گندم کی امدادی قیمت جو ہے وہ 3900 روپے فی من ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک ہدف جو ہے وہ یہ مقرر کیا گیا کہ 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ پنجاب حکومت رواں سال خریدے گی۔ اب اس فیصلے سے براہ راست جو ہے وہ کسانوں کو 30 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ پہنچائے گا۔ یہ محکمہ خوراک کے اعداد و شمار ہیں، اور محکمہ خوراک کے اعداد و شمار کے مطابق 30 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ نواں مالی سال میں جو گندم کے کاشتکار ہیں ان کو ہوگا۔ حالانکہ دوسری طرف جو کسان ہیں ان کی طرف سے جو خطوط لکھے گئے وزیر اعظم پاکستان کو، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ 380 ارب روپے کا نقصان جو ہے براہ راست کسانوں کو ہوگا، لیکن اب جو حکومتی اعداد و شمار ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب اس میں جب فیصلہ یہ ہوا تو اس میں بات یہ سامنے آئی کہ محکمہ خوراک پنجاب کا اور حکومت پنجاب کا موقف یہ سامنے آیا کہ گوداموں میں پہلے ہی 23 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، تو لہٰذا پنجاب حکومت جو ہے وہ مزید گندم نہیں خرید سکتی، اور اس کے لیے کیونکہ 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم پچھلے سال جو ہے وہ خریدی گئی اور اس سال ہدف جو ہے وہ صرف 20 لاکھ میٹرک ٹن رکھا گیا، تو حکومت نے موقف یہ اختیار کیا کہ ان کے پاس اسپیس نہیں ہے کہ جس پہ وہ اضافی گندم جو ہے وہ اپنے گوداموں میں اسٹور کریں۔ لیکن اس فیصلے کے بعد اب کسانوں کو جو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت پنجاب نے پالیسی جو ہے وہ گندم کی خریداری کے اوپر وہ گو سلو پالیسی اپنائی کہ سست روی سے ہی گندم خریدی جائے گی، اور خریدنے سے جو 7 لاکھ سے زائد کسان ہیں وہ اس بار متاثر ہو رہے، کیونکہ محکمہ خوراک نے جو درخواستیں وصول کی باردانے کے حوالے سے وہ بھی بہت کم وصول کی، اور اس کے ساتھ جو باردانوں کی تقسیم کا معاملہ ہے اس میں بھی پالیسی جو ہے وہ اپنائی گئی کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رام ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔
दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की गंदम पॉलिसी पर किसानों का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज के पेश नज़र पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है। पुलिस ने मॉल रोड से खातून समेत 3 किसान हिरासत में ले लिए। हाफिज दिलावर हुसैन हमारे साथ हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर, अपडेट्स लेंगे उनसे। जी हाफिज दिलावर, अपडेट कीजिएगा। किसानों की जानिब से हुकूमत की जो किसान का पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ आज चेरिंग क्रॉस पर जो है एहतजाज की कॉल दी गई थी और 2 बजे की एहतजाज की कॉल थी, लेकिन अब 3 से ऊपर टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर मुजाहिरीन जो है चेरिंग क्रॉस पर नहीं पहुँच सके। और इसके साथ साथ जो पुलिस की भारी नफरी है वो चेरिंग क्रॉस पर आज दोपहर से ही जो है मौजूद थी और अभी भी इस वक्त भी मौजूद है। वाटर कैनन भी मौजूद है, इसके साथ पुलिस प्रिजन वैन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। नफरी जो है वो बिल्कुल तैनात है। अगर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल रवा दवा है माल रोड पर, इसके साथ मुल्क का जो भी रोड्स हैं उन सब पर जो है ट्रैफिक भी जारी सारी है। इससे पहले क्योंकि किसान प्रेस क्लब के बाहर भी जो है एहतजाज कर चुके हैं और आज भी यही तवक्को की जा रही थी कि जो है आज कुछ ज़्यादा पंजाब भर से जो किसान है वो यहाँ पर एहतजाज में जो है वो शरीक होंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है कोई भी मुजाहिरीन नहीं पहुँच सके। जो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, लेकिन जिसे तवक्को की जा रही थी कि एक बड़ी तादाद जो है मुजाहिरीन की आज यहाँ पर चेरिंग क्रॉस पर पहुँचेगी और एहतजाज किया जाएगा, वो नहीं हो सका। पुलिस जो है वो अभी तक यहाँ पर तैनात है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा हाफिज दिलावर। आबिद चौधरी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा, पुलिस की जानिब से खातून समेत 3 किसान हिरासत में लिए गए हैं, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, आज किसान इत्तेहाद की जानिब से फैसल चौक के सामने एहतजाजी धरना दिए जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन इसी सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर पुलिस की जानिब से शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई, जिसके बाद किसानों को इस वक्त मार रोड पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब रिक्शा में सवार होकर फैसल चौक पहुंचने वाले 3 किसानों को किला गुजर सिंह पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस राय के हवाले से कहना है कि जो हमाद शाह ने 3 किसानों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए जाने वालों में शरकपुर के रहायशी मंजूर अहमद और गुजरांवाला के रहायशी यूसुफ, जबकि यूसुफ के हमराह का आयशा बीबी थी, जिनको पुलिस की जानिब से हिरासत में लेकर तीनों अफराद की उसद किला गुजर सिंह की हवालात में बंद कर दिया गया। ताहर इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन पुलिस राय के हवाले से कहना है कि पुलिस हुकाम की जानिब से जो हदायत मसूल होंगी तो उसके बाद भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन इस वक्त फैसल चौक के सामने पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई ताकि किसान इत्तेहाद एहतजाजी धरना ना दे सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी हमारे। पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए गंदम के मामले पर नई हिकमत अमली मुरतब कर ली। पंजाब हुकूमत के पास अगले सीजन के लिए तकरीबन 23 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। हुकूमत ताहाल गंदम की खरीदारी में अदम दिलचस्पी का इजहार कर रही है, ज़राए का ऐसा कहना है। किसानों के पास मौजूद गंदम में नमी है, ये भी बताया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। गंदम के मामले पर नई हिकमत अमली मुरतब करने का काम शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि पंजाब हुकूमत के पास अगले सीजन के लिए तकरीबन 23 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ताहाल गंदम की खरीदारी में हुकूमत जो है वो अदम दिलचस्पी का इजहार कर रही है। बताया गया है कि किसानों के पास मौजूद गंदम में बारिशों की वजह से नमी मौजूद है और हुकूमत के लिए बारिशों की वजह से नमी वाली जो गंदम है उसे स्टोर करना कदर मुश्किल है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक किसानों को रिलीफ देने के लिए 130 अरब रुपए का किसान पैकेज भी लाया जा रहा है। किसानों को फी मंथ सब्सिडी देने के हवाले से भी गौर शुरू कर दिया गया है। महकमे खुराक के मुताबिक हुकूमती पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को 400 से 600 रुपए फी मंथ सब्सिडी देने पर गौर किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा बैनुल सूबाई नकलो हमल से पाबंदी उठाने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। जी सलीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। अभी आपको बताएं, टीचिंग हस्पताल अद्वियात खरीदारी की मद में 9 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अद्वियात खरीदारी के लिए ताहाल फंड्स फराहम नहीं किए हैं। फंड्स न मिलने पर अद्वियात खरीदारी की अदायगियाँ नहीं की जा सकी हैं। मजीद इस मामले पर तफसीलात जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। पंजाब भर के सरकारी टीचिंग अस्पताल मजमूई तौर पर अद्वियात खरीदारी की मद में 9 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। टीचिंग अस्पतालों की जानिब से जो है वो अद्वियात तो ख़रीदी गई, लेकिन उनके बिल्स जो हैं वो ताहाल अदा नहीं किए गए और ये मजमूई तौर पर 9 अरब रुपए बनते हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो टीचिंग अस्पतालों में ये वाजिबुल अदा जो रकम है 9 अरब रुपए की, वो अभी तक जो है वो फराहम नहीं कर सका
और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो बार बार हुकूमत से उसकी जानिब से जो है वो इस्तदा की जा रही है, महकमा ख़जाना से इस्तदा की जा रही है कि ये जो है वो बकाया जात की अदायगी के लिए फ़ंड्स उसको खुसूसी तौर पर फराहम किए जाएँ, लेकिन ताहाल ये फ़ंड्स नहीं मिले। और दूसरी जानिब जो टीचिंग अस्पताल हैं उनको अपने बकाया जात जो है वो अदा ना करने की वजह से मज़ीद अद्वियात की ख़रीदारी में मुश्किलात का सामना है, और उससे ना सिर्फ जो है वो अद्वियात जो है वो नहीं ख़रीदी जा रही, बल्कि जो टीचिंग अस्पताल हैं उनमें आने वाले जो मरीज़ हैं वो इस सूरत हाल से जो है वो दो चार हैं, उनको परेशानी का सामना है, और उनके लिए जो अद्वियात की कमी है वो आए रोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, और उसमें शिद्दत आना शुरू हो गई है कि मरीज़ जो हैं वो अब उनको अद्वियात ना मिलने की जो शिकायत है उसमें बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन को बड़ी कामयाबी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अमेरिकन काउंसलेट के क़याम के लिए CBD को NOC दे दिया। CBD में डिप्लोमेटिक इनक्लेव के क़याम के विजन को साबिक निगरान हुकूमत ने तक़वीयत दी। इस वाले से मज़ीद बात कर लेते हैं, दुर नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, और साबिक निगरान हुकूमत निगरान वज़ीर आला का जो विजन था जिसमें अमेरिकन कॉन्सुलेट समेत चाइना और तुर्की के कॉन्सुलेट को ला के CBD में डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनाना था, उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई, और इस हवाले से NOC मोफा की जानिब से CBD को दे दिया गया, और अमेरिकन कॉन्सुलेट को भी इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और अब इसमें सिर्फ एक टीम है जो आइंदा हफ्ते या रवे हफ्ते मुतवक्के है कि वो आए और आके बाकी मामला को तय करें, जिसमें इसकी फाइनेंशियल पैसे किस तरह से दिए जाएंगे और पर कनाल जो कीमत का तयन किया गया उसकी किस तरह से मुमकिन होगा, जो डॉलर में पेमेंट होनी है, इस हवाले से बस एक मीटिंग रह गई है, जिसके बाद ये लाहौर शहर में 100 कनाल से ज़्यादा CBD के अंदर डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनेगा, और उसमें अमेरिकन कॉन्सुलेट के पास बड़ा हिस्सा होगा। जी दुरनाया, बहुत शुक्रिया आपका। पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की इस्ताद कार बढ़ाने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूशन को 4 अरब 56 करोड़ का बजट दे दिया। डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी कमेटीज़ की तोसी भी होगी, जबकि नई कमेटियां प्रोसिक्यूशन के मामलात पर PPD डिपार्टमेंट की मदद करेगी। और हमारे साथ अली रामे हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है उनकी इस्ताद कार बढ़ाने का फैसला किया गया है, और पंजाब हुकूमत प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को आइंदा आने वाले साल में 4 अरब 56 करोड़ रुपए का बजट जो है वो देगी। तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ तजावीज़ जो है वो हुकूमत पंजाब के सामने रखेंगी, और कहा गया कि अब नई कमेटियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं, तो नई कमेटियाँ प्रोसिक्यूशन के मामलात पर जो है PPD डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे, उसमें मदद देंगी। क्योंकि प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो साल 9 मई हुआ उसमें बहुत ज़्यादा गफलत जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिखाई दी, तो उस पर हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि उनकी अब कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो की जाएगी, और PPP डिपार्टमेंट को मजीद वसी जो है वो किया जाएगा। और साथ ही बजट में, आने वाले बजट में, आइंदा वाली साल में 4 अरब रुपए का बजट उनके लिए एलोकेट किया जाएगा, ताकि डिपार्टमेंट को मजीद बेहतर और प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो फोकस किया जाए। ठीक है, अली रामी हमारे साथ तहक़ा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। निकाह खां, वालिदैन और गार्डियन हो जाएं होशियार। 18 साल से कम उम्र की शादी कराने पर 3 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख जुर्माना होगा। निकाह ख्वाह शनाख्ती कार्ड देखने का पाबंद होगा, जबकि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से कहा गया है खिलाफ वर्जी पर वालिदैन, सरपरस्त और निकाह ख्वाह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ राउदुशाद हुसैन मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। जी राउदुशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, अर्ली चाइल्ड मैरिज के तदारुक के हवाले से पंजाब में भी अब एक बिल जो है वो टेबल किया गया, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन और रुकने सूबाई असम्बली सारा अहमद ने ये बिल टेबल किया, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जो है खसूसी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की। इस कमेटी का भी इजलास हुआ है, इस इजलास में क्या फैसले हुए हैं और इस बिल के हवाले से इसकी जो हमेशा कवानीन बनते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन एक मसला रहा है, इस पर एग्जीक्यूशन कैसे हो सकेगी बात करते हैं सारा से। बहुत शुक्रिया मैम, बताइएगा कि बिल आ गया, आपने टेबल कर दिया, ये कानून बन भी जाएगा, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से हम देखते हैं कि उस तरह से कहीं कहीं ये भी जो अलमारियों की जरूरत तो नहीं रहेगा बिल। देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन बाद में आता है, पहले कानून बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी एज 16 और हम कह रहे हैं 18 कर दें। उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, स्ट्रगल, चीफ मिनिस्टर पंजाब की सपोर्ट, स्पीकर पंजाब असम्बली की, पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट है, तो फिर ये बिल जो है पास होगा इंशाल्लाह सून, एंड आई सी इट हैपनिंग सून इंशाल्लाह। फिर आई बात इम्प्लीमेंटेशन जो आपने पॉइंट आउट किया, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो इवन एज ऑफ टुडे
हम अपने कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके ऐसी शादियां रुकवा रहे हैं पंजाब में जो कम उम्र की शादियां हैं। तो एक तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1121। मैं चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू लोगों को पता चले कि अगर कहीं अर्ली मैरिज देखें, चाइल्ड मैरिज देखें, हमें इन्फॉर्म करें वेल बिफोर टाइम, ताकि हम वो शादी रुकवा सकें, हम उस बच्चे की ज़िंदगी बचा सकें। ऐसे विक्टिम्स हमारे पास ब्यूरो में अभी भी रह रहे हैं। तो एक तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो आगाही मुहिम भी चला रहा है चाइल्ड मैरिज की, ताकि जो है वो रोकथाम हो सके। मैं आपको कुछ बताया कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज़रूरी है, और हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट को इख्तियार दिया इसकी कॉग्निसेंस का, वो इसीलिए दिया ताकि स्पेशल कोर्ट हो और उसके लिए डील करें। ठीक है जी, इसके लिए बहुत शुक्रिया।